I knew that. That was superb. Thank you, Arunima. Thank you. Now, moving towards our webinar. Moving towards the webinar, I would like to call upon Dr. Samir Bajpai sir. He is the professor in civil department and also the head of career development cell CDC in NIT Raipur, Chhattisgarh. Sir, I would like to call you to explain us in the about the topic. Explain the difference between coexistence based value education and moral education. Sir, please explain something about this. We are very eager for that. Thank you, Prana. Thanks a lot for having me here. And Yes, it's sir. always a pleasure to interact with you all. How much time I have? Sir, as much you can take. Okay. So keeping to your pattern in mind, I'll try to explain that why coexistence based education, value education is better than you can say our standard moral education. So if I ask you all our students that whether moral education है ना, moral education और जिसको हम मूल्य शिक्षा या नैतिक शिक्षा बचपन में कहते हैं पढ़ते हैं, क्या वो काम करती है? Does it work? So obviously you will say that sometimes it works, sometimes it's not. And mostly when we grow up, we come to, you can say, our higher education level, most of the things which were given to us uh, as moral education or as value education या नैतिक शिक्षा के रूप में, we tend to realize, I don't know, of course, inaccurately, that real world doesn't follow what have been told to us, and we see everywhere contradictions whenever we are going to practice these moral education teachings in our life. Why this happens? So first thing is that if you remember the kind of moral education you had in your school days, mostly it is a list of do's and don'ts. It's sort of preaching, it's sort of sermon that you should do this thing, they should not do this thing, like that. And sometimes it is explained through some story, and that story sometimes relates to animal forms, sometimes other human beings and all, and we may not be able to correlate with these stories and these statements. But if you try to remember what have been given to us, mostly logic was not there, mostly analysis was not there. And human constitution is such that we accept only those things which have of some basis or some logic. So that's what is missing in conventional moral education, and that is why mostly it doesn't work. People, while going through their life, while observing real life, how is it going on around us, we realize that these things are theoretical. These things are good in principle, but it's very difficult to practice them. While if we look at coexistence based value education, then first we need to understand what is coexistence and how and why it has come into domain of value education. So we all are students of science, and we are engineers. We'll be applying knowledge of basic sciences for various solving various problems. So basically, if we look at coexistence, then we find coexistence in everything. If you look around you, every unit is in coexistence with other unit at a very basic level also, and a very higher level also. Be it you can say the largest entity in this existence which we as human being have understood and making use of it, you can say solar system, because beyond solar system it's still fuzzy. People are still coming up with lot of analysis, lot of theories, lot of understanding, but solar system we have understood. So solar system, you can say, is one of the largest units which we have understood, and it functions based on certain principles, certain and certain facts, and people are able to analyze it, and that is why experts can project that when the sun eclipse will be there, for how much time it will be observed, at what location it can be observed, and the other locations where it can't be observed.
So you can say largest entity in our existence, which you can say understood by the human beings, because it follows certain basic principles, fixed principles. We can also call these principles as universal principles, because sun's motion, earth's motion, other planets motion around sun and around their own axis is not going to change. They follow a certain universal principles. If you look at if you look at this solar system, which is you can say the largest entity in our existence, which is understood by us, we find that all sun and all the planets and and satellites of all the planets, they have a coexistential relationship. Without this coexistential relationship, the solar system won't be possible. There will be a lot of, you can say, chaos. So we can very well understand that coexistence is essential to make things work, to keep things in order. And if coexistence is not there, then this order will be disturbed, and may not be any civilization, human civilization on earth that way, and possible. If you look at the smallest unit, which is functional, which is in order, which we can understand as human beings and are making use of it in our daily life, the smallest entity, smallest unit is atom. Because below atom, things are not that orderly. But atom, you can say, is the smallest unit in existence, which is in order. Now, if you look at formation of atom, again, there is coexistence. And it is deriving energy from somewhere, electrons, protons, neutrons. We all have read about it. And we know that there is certain coexistence between electrons, neutrons, and proton relationship. And that is why atom is able to follow, again, certain universal principles. Okay. So coexistence is everywhere. At a very, you can say, larger scale, if you see, then we see that there are various things, various units. We are there, plants are there, materials are there, things are there. And we can, though it is not obvious to us, but we can imagine that there is space between every unit. That is why we can identify the shape, size of every unit. If a space is not there, we won't be able to identify this unit. Now, we actually don't have much comprehension about this space. But if you look at that, we can understand that this space and these units are in some coexistence. Because if you look at the very basic formation of atom, then from where do the electrons getting their energy? From where do the protons getting their energy? There is some energy source which is surrounding all of us. And at subatomic level, subatomic particles are getting energy from this energy source. Now, we all know that a lot of research is going on for dark matter, finding dark matter or God particle. Let's hope that someday we are able to solve that mystery also. But I gave you example of, you can say, largest entity, largest unit in our solar existence, that is solar system. There is a coexistence. And smallest unit in our existence, atoms, there again is coexistence. Without coexistence, order is not possible, and without coexistence, harmony is not possible, and without coexistence, you can say one cannot be useful to other. So coexistence is the basis of our existence, and not only our existence. Coexistence is basis of all the existence, and that is why anything which guides us has to be coexistence based, because coexistence is basic philosophy of, you can say, existence of nature which is around us. So first thing is that why value education has to be coexistence based, because we are coexistence based, and without discussing, understanding coexistence, we won't be understand and follow values as such. Now, if you look at how this concept of value should be understood and how it should be driven, or how rather it is driven in reality. So again, we come to same example that like I was saying, that in moral education, we don't tell about the logic, about the basis, about the philosophy behind that statement, and that you should always speak truth. Now, what is truth? Nobody explains us. Why we should always speak truth? Nobody explains us. Only a statement is there कि भाई आपको हमेशा सच बोलना है, और आपको अनुभव ये होता है व्यक्तिगत जीवन में, जब जब सच बोलते हैं झापड़ पड़ता है, डांट पड़ती है, पिटाई होती है.
तो फिर क्या होता है, ये कंफ्यूज करता है छोटे बच्चों को, है ना, व्हेन स्कूल लेवल, व्हेन वी आर गेटिंग दिस मोरल एजुकेशन, देन इट कंफ्यूजेस द किड्स, चिल्ड्रन. So that is why then they become wary of it, and because whenever they practice this thing, the results are not very, you can say, soothing. So again, let's come back to coexistence based value education. What should be the core principles of this, and how we can identify that whether what we are listening to, or what we are understanding is correct or not. So again, let's come back to same example which I was giving you, and that example is the largest entity in our existence and smallest entity in our existence. If we look at these smallest entities, atoms, they follow certain universal principles of, you can say, physics, you can say, hai na? So whether an atom is there anywhere on this universe, in this universe, its behavior will be following certain principles which are universal. Universal, when I say universal, means it is true across space and time. Across space means anywhere, any place, atom's behavior will be governed by those very principles only. Across time means present, past and future. Atom's behavior will be governed by these principles which are universal. So smallest entity in this existence is following certain universal laws, certain universal principles. Now let's look at the largest entity, which is in order, which we have understood and which we are making use of. Why? Because we have understood its this thing. Solar system is again behaving based on certain universal principles, universal laws. So simple conclusion can be drawn that when smallest entity, smallest unit in this existence is following certain universal laws, and when the largest entity, largest unit in this existence is following some universal laws, human beings are also part of the same existence, and there must be some universal laws for our own behavior, our own action, and we need to understand those universal laws, those universal principles, so that we live in order, we live in harmony, like other units are living that way. Because if you look around you, apart from human beings, every other unit, every other species is living in harmony with nature. They are not disturbing nature. They are not disturbing anything. They are not creating problems. They are following their universal principles, universal laws. We human beings are not following our universal principles, universal laws, because we haven't understood that. And one way of defining value is those universal principles, those universal laws that are applicable to us. Because once we follow these, understand these universal principles and universal laws, then only we can be in harmony, and we can be in order. And until unless we are in harmony and we are in order, we won't be able to contribute. And our contribution is our value. And coexistence based value education actually addresses this only. This education provides you the framework, the foundation of various universal laws, various universal principles, which are applicable to us human beings. And once we understand these logic behind these universal principles, universal laws, we are able to logically accept them. We can analyze them, we can apply them, and if they give us harmony, give us order, give us happiness, give us prosperity, then who won't be then applying these in their life? So that is why, that is the basic difference between, you can say, conventional, traditional moral education and coexistence based value education. So I hope that I am able to clear this concept to you, and if you now have any questions, then I will be very happy to answer your questions. Thank you so much. हिना जी, कुछ और चाहती हैं आप किसी और बात पे? मैं मेरी बात स्पष्ट नहीं हो पाई या किसी बात पे और मुझको ज्यादा क्लैरिफाई करना चाहिए? एग्जांपल। जी सर, ये क्वेश्चन आता है कि वैल्यू एजुकेशन जो है वो कुछ नया नहीं है, मोरल एजुकेशन ही है, जो एक परिवार में कैसे अच्छे से रहना चाहिए ये तो पेरेंट्स भी बताते हैं।
तो ये वैल्यू एजुकेशन में ऐसा क्या नया है जो हम सुने, हमको कुछ नया नहीं लगता है, ऐसा भी कई लोगों के मन में आता है। क्या आप ऐसा और एग्जांपल देके क्लियर कर पाएंगे कि जिससे ये समझ में आए कि नहीं, वैल्यू एजुकेशन और जो मोरल एजुकेशन कह रहे हैं वो तो आपने बहुत अच्छे से समझाया अभी, लेकिन फिर भी थोड़ा और आप इसमें बताएं कि क्यों अलग है ये? वैल्यू एजुकेशन ही नाम है इनका, या माने इसमें मोरल एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन में व्यवहारिक दृष्टिकोण से कुछ आप एग्जांपल दीजिए कि मेरे को बिल्कुल, अगर हाँ जी सर, बहुत कंटिन्यू। बहुत अच्छा आपने ये व्यवहारिक पॉइंट उदाहरण दीजिए। पॉइंट रखा है। देखिए इस पे, हम्म, देखिए बेसिक फिर वही हमको जाना पड़ेगा कि हाँ, जब तक कोई चीज यूनिवर्सल नहीं होगी, जो बात हमसे कही जा रही है ना, कही जा रही है, वो यूनिवर्सल नहीं होगी, वो सार्वभौम नहीं होगी, तो गलतियां होंगी, तो लड़ाइयां होंगी, तो मत भेद होगा, संघर्ष होगा, है ना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि क्यों यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल लॉज जरूरी हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज जरूरी हैं हमारे लिए। इसलिए जरूरी हैं कि अगर एग्जिस्टेंस को हम देखते हैं तो उसमें सभी इकाइयों के लिए वही चीजें एप्लीकेबल हैं, है ना। एटम के लिए अलग अलग, जो अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग एटम्स हैं उनके लिए जो लॉज हैं, कुछ बेसिक लॉज हैं, कुछ उनके अपने इंडिविजुअल लॉज हैं। इसी तरह ह्यूमन बींग्स के लिए भी ये नियम, ये लॉज यूनिवर्सल होना चाहिए, तभी हम और आप एक फ्रीक्वेंसी पे, एक अंडरस्टैंडिंग पे जी पाएंगे। जब तक यूनिवर्सलिटी नहीं होगी तो जीने में संघर्ष तो चारों तरफ दिख ही रहा है। उसकी मूल समस्या यही है कि सार्वभौमिकता नहीं है हमारे, जो भी हमको सिखाया जा रहा है, जो भी हमको बताया जा रहा है। इसलिए हर स्तर पर लड़ाइयां हैं, हर स्तर पर संघर्ष है, वैचारिक से लेके और राष्ट्रों के बीच में संघर्ष हो रहा है। आज भी हमने इतनी, यू कैन से ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज फ्लरिश्ड, हैज डेवलप्ड, है ना, मैग्निफिसेंटली, बट प्रॉब्लम्स हैव आल्सो डेवलप्ड मैग्निफिसेंटली, दे हैव आल्सो बिकम वेरी वेरी लार्ज स्केल। सो बहुत छोटी छोटी बातें जैसे घर पे हमको बताई जाती हैं, है ना, उनका उनका बेस हमको नहीं बताया जाता, है ना। ये बेस समझने की जरूरत है। जैसे आपको अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि सभी आपको बोला जाता है सदा सच बोलो। अब सच सबका अलग अलग है ना। सच आपका बदलता है, कैसे बदल जाता है सच आपका? आपकी आयु से बदल जाता है, आपके जेंडर से बदल जाता है, आपके धर्म से बदल जाता है, आपकी जाति से बदल जाता है, आपके रंग से बदल जाता है, आप कौन से देश में कहां निवास करते हैं उससे बदल जाता है। भूतकाल का सच कुछ और था, वर्तमान का सच कुछ और है, भविष्य का सच कुछ और हो जाएगा। तो ये सारा, जब भी सार्वभौमिकता नहीं होगी, जब भी यूनिवर्सलिटी नहीं होगी, तो ये संदेह, ये कंफ्यूजन, ये झंझावात हमेशा रहेगा रहने में मनुष्य के। और प्रॉब्लम यहीं पे है ना। एक बहुत पुराना शेर है एक्चुअली, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। तो वही बात है कि हमने बहुत सारी चीजें की, बहुत सारी सफलताएं हमारे क्रेडिट पे हैं, बट कहीं ना कहीं भटकाव है, इसलिए संघर्ष है, इसलिए लड़ाई है, इसलिए झगड़ा है। धर्म का झगड़ा है, जाति का झगड़ा है, रंग का झगड़ा है, जेंडर का झगड़ा है। कहाँ आपको हारमोनी दिखती है, कहाँ आपको खुशी दिखती है, ऑर्डर दिखता है ना। और जितना हम ये सो कॉल्ड जो हमारा विकास है या डेवलपमेंट है उस पर जितना बढ़ रहे हैं, उतना संघर्ष बढ़ रहा है ना। आज देखिए हमको युवाओं में मानसिक अवसाद की बात करनी पड़ रही है, डिप्रेशन की बात करनी पड़ रही है। क्यों भाई, है ना। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि हमको समझने में कोई मौलिक चूक हुई है। वी हैव मेड सम फंडामेंटल मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूज, and all this mistake, all this confusion, all these doubts become very clear once we apply this law of logic of universality in understanding the values, in understanding the truth. What is true? If I apply law of universality on truth or true, what will be true, or true thing or true statement or truth, is that it should be applicable to every person, every human being, anywhere in this existence. Universality of space, universality of time, across time. पास्ट में भी वो उतना ही एप्लीकेबल था, अभी भी उतना ही एप्लीकेबल है, और भविष्य में भी उसी तरह से एप्लीकेबल होगा। अक्रॉस जेंडर, लड़कियों के लिए भी एप्लीकेबल है, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, मेल के जो है उनके लिए भी एप्लीकेबल है, कोई डिफरेंस नहीं। कास्ट, किसी की जाति से उसका कोई लेना देना नहीं, वो ह्यूमन बीइंग की बात है, यूनिवर्सल है, सबके लिए एप्लीकेबल है। रंग से उसका कोई भेद नहीं है, उसका धर्म से कोई भेद नहीं है, तब जाके जीना आपका आसान हो पाता है, सरल हो पाता है। क्योंकि
यूनिवर्सलिटी जो है और कोएग्जिस्टेंस जो है, ये मूल मंत्र है सारे अस्तित्व का, सारे एग्जिस्टेंस का। और इस मूल मंत्र को समझे बिना हम कुछ भी पढ़ने जाएंगे, कुछ भी समझने जाएंगे। साइंस क्यों पढ़ पाए, साइंस क्यों समझ पाए? यूनिवर्सलिटी के कारण। फिजिक्स यूनिवर्सल है, फिजिक्स अलग धर्म के व्यक्ति के लिए अलग फिजिक्स होगा, अमेरिका में जो रह रहा है उसके लिए अलग फिजिक्स होगा, हिंदुस्तान में जो रह रहा है उसके लिए अलग फिजिक्स होगा, पाकिस्तान में जो रह रहा है उसके लिए अलग फिजिक्स होगा। ऐसा नहीं है ना? कल भी फिजिक्स के प्रिंसिपल वही थे, चाहे हमने समझा था चाहे नहीं समझा था, है ना? जब न्यूटन ने ध्यान दिया तो उनको ग्रेविटी समझ में आई, जब आइंस्टीन ने ध्यान दिया तो उनको रिलेटिविटी समझ में आई। हमने उसको समझने में आगे बढ़े हम, है ना? लेकिन यूनिवर्सलिटी के कारण ही हम उसका फायदा उठा पाए, यूनिवर्सलिटी के कारण ही हमने इतनी सारी सुविधाएं विकसित की हैं। अगर यूनिवर्सलिटी नहीं होती तो क्यास होता, है ना? तो इस तरह से हमको समझ में आता है कि भाई जो हमको अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही वो खराब नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमको जो भी बताया गया मोरल एजुकेशन में वो गलत है, गलत नहीं है, लेकिन उसका लॉजिक जो होना चाहिए और उसको जो यूनिवर्सलिटी से हमेशा जोड़ना है। जब देखिए बेसिक चीज है जिंदगी में, जब भी आपके सामने कोई प्रश्न आए, किसी चीज को समझना हो, किसी बात को जांचना हो, केवल और केवल यूनिवर्सलिटी को अप्लाई कीजिए। यूनिवर्सल, इट मस्ट बी MUST इन कैपिटल लेटर्स, बोल्ड लेटर्स, it must be universal for human beings, equally applicable across space and time, across gender, across color, across race, across creed, है ना? तभी वो चीज सही है। बाकी कुछ है तो फिर धोखा है ना? और धोखे में तो हम जी रहे हैं पिछले, जब से मैं बताया ना कि हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, है ना? तो जी रहे हैं हम लोग धोखे में, है ना? तो इस धोखे से बचने का यही तरीका है मित्रों कि कोएग्जिस्टेंस बेस्ड यूनिवर्सल वैल्यूज को समझें। और ये जो आपकी क्लास है, ये जो आपके डिस्कशन है, सब उसी के चारों तरफ घूमते हैं। और एक बार आपने इस सत्य को समझ लिया, इन नियमों को समझ लिया जो सार्वभौम है, तो आपका जीना बहुत आसान हो जाएगा। आपको कहीं डिसीजन लेने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं लगेगा। आपको मालूम है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, भले दुनिया उसको गलत माने। एक दिन गैलीलियो को भी लोग मारने लग गए थे, है ना? कोपरनिकस को भी मारने लग गए। क्यों मारने लग गए? वो सही बोल रहे थे, लेकिन उस समय का सच अलग था, समाज का सच था, वो यूनिवर्सल नहीं था, है ना? तो ये स्थितियां, इसके बहुत सैकड़ों उदाहरण है, हजारों उदाहरण है कि जो गलतियां हमने की हैं क्योंकि हमारा सच यूनिवर्सल नहीं था, हमारी वैल्यूज, हमारी अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल नहीं थी। सारा लफड़ा यही है, सारा झगड़ा जो है, सारा संघर्ष जो है, वो इसी मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग से आता है ना? तो इस बात को समझें तो आपका जीवन बहुत आसान होता है, बहुत सरल होता है। और आपका जीवन जब सरल होता है तो आपके साथ में जो लोग जीते हैं उनका भी जीवन सरल होता है ना? थैंक यू। जी सर, आपने काफी अच्छे से बताया। ये डू एंड डोंट से मुक्त है, करो या मत करो, ये इससे मुक्त है। वो काम और ही नहीं करेगा हिना जी। डूज एंड हाँ, डोंट्स करो या ना मत करो, काम करता हाँ, होता तो अभी हम बहुत हाँ, अच्छे समाज में जीते होते। वो काम ही नहीं करता, है ना? जी ह्यूमन सर, बीइंग जो है वो लॉजिकल है, वो स्पीसीज है, वो बिना सोचे विचारे इस पे काम पे जाता नहीं है। तो उसको जब आप लॉजिकल के बेस्ड पे नहीं करोगे और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे हम नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगा। इसलिए काम नहीं करता वो, और करेगा भी नहीं। उपदेश काम नहीं करते, प्रवचन काम नहीं करते, जी भाषण सर, काम नहीं करते, है ना? जब तक हम अपनी जिम्मेदारी पे, हमको ऐसा कोई मूल मंत्र, ऐसा कोई आधार नहीं मिलता जो कि हमारी सोच को दिशा दे पाए, है ना? किस उस पे बेसिस पे, यूनिवर्सलिटी के बेसिस पे, तभी वो काम करेगा। इससे कम काम करता नहीं। और इसके लाखों उदाहरण मानव इतिहास में हैं, है ना? बहुत अच्छी बात कही आपने। हेलो सर, जैसे आई हैव ए हाँ बोले, क्वेश्चन। जरूर बोले। हाँ, जैसे अभी मूल्य जो है अभी सबका अपना अपना है, सभी धर्म का अपना अपना मूल्य शिक्षा है, अपने अपने हिसाब से मूल्य शिक्षा बताएंगे। लेकिन आप जो को एग्जिस्टेंशियल बेस्ड जो वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो इससे बाहर है। वो यूनिवर्सल जो आप बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है कि मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं होता। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो यूनिवर्सल है, वो सबके लिए एक है। कि ये पानी कैसे बना, ये मिट्टी पत्थर जंगल कैसे बना, इसके यूनिवर्सल लॉज हैं। वैसे ही उसी ह्यूमन वैल्यूज की हम बात कह रहे हैं आप कि को एग्जिस्टेंशियल बेस्ड, कि ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये यूनिवर्सल है। प्रॉब्लम अभी वहीं जो पर है। जो हाँ, जो यूनिवर्सल नहीं है वो असत्य है, वो झूठ है। जी सर, उस समय हमको सत्य लग सकता है जिसके चक्कर में गैलीलियो निपट गए, कोपरनिकस निपट गए, है ना? जी सर, ये उस समय, उस क्षण सच हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सल सच नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ, ये समझना पड़ेगा। और यूनिवर्सल से कम में काम बनेगा नहीं। वहीं संघर्ष, वहीं गड़बड़, वहीं भटकाव है। देखिए, कोएग्जिस्टेंस नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा, कोएग्जिस्टेंस नहीं होगा, हार्मनी नहीं होगी, है ना? तो कोएग्जिस्टेंस को समझना,
यूनिवर्सलिटी को समझना चीजों की, सिद्धांतों की, ये बहुत जरूरी है ठीक से जीने के लिए। जो हम ढूंढ रहे हैं सुख, समृद्धि, संतोष, शांति, आनंद, वो सब केवल और केवल कोएग्जिस्टेंस बेस्ड यूनिवर्सल वैल्यूज जो हैं उनको समझने से ही आएगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, चाहे हम इसको स्वीकार करें चाहे ना स्वीकार करें। तो जिस तरह अभी सबके धर्म अलग अलग हैं, उसी तरह से मूल्य भी अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर एक यूनिवर्सल वैल्यूज की बात आपने अच्छे से बताई है कि ये सबके लिए एक है। अगर पानी का बनना और उसका उपयोग में आना सबके लिए एक है, उसी तरह से मूल्य भी सार्वभौम होता है। मूल्य मेरा और आपका अलग अलग नहीं होता, सार्वभौम मूल्य की आपने बात कही। और इसमें अगर हम कहें कि अभी जो नैतिक शिक्षा दी जा रही है वो कहीं ना कहीं एक संस्कार के रूप में है कि मैं परिवार में, मेरा संस्कार मेरे परिवार के साथ कैसा रहे, वहां तक वो नैतिक शिक्षा काम करता है। लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं, समाज और प्रकृति की हम बात करते हैं, तो वहां पर हमको यूनिवर्सल वैल्यूज की जरूरत है। वहां पर जो नैतिक शिक्षा की हम बात कर रहे हैं कि ये करना है ये नहीं करना है, वो वहां पर भी काम नहीं आता है। जिससे कि हम धर्म के झगड़े जो देख रहे हैं वो यही है। तो ये आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये जो है सारा एटम, सारा जो सिस्टम है, पूरा जो यूनिवर्स है, उसका एक किसी नियम से अगर वो डिजाइन है, तो हमारा भी जीना भी किसी को एक डिजाइन से ही है। तो जैसे हम ये देखते हैं कि प्रकृति में अगर हम देखें कि प्रकृति और मानव को, तो यहाँ पर भी एक ही यूनिवर्सल लॉज वर्क करता है कि मैं ऐसा काम करूं जिससे नेचर बैलेंस हो और ह्यूमन के बीच में प्रॉब्लम ना हो। तो यही इन्हीं से निकला हुआ अगर कोई ज्ञान की हम बात कर रहे हैं तो वो मूल्य शिक्षा है। तो मूल्य शिक्षा का मतलब यही है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, न कि धर्म से किसी जुड़े हुए मूल्य की हम बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट तो है, सेम नहीं है। जो मोरल एजुकेशन और कोएग्जिस्टेंशियल बेस्ड जो हम वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो अलग तो है। और इसमें जो धर्म जो झगड़े नहीं होंगे, वो अगर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज अगर सब जगह पहुंचता है, तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आएगी कि मेरा धर्म और तुम्हारा धर्म और मैं अलग तुम अलग। तो ये जो पूरे दुनिया में हम जो देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं कि दो देश की सीमाओं में जो झंझटें हो रही है, वो क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं हमारा वैल्यूज जो हमें सही ढंग से एड्रेस नहीं हुआ है। मेरा और तुम्हारा सब अखंड समाज की बात ना केवल देशों के बीच में, हमारे अंदर झंझटें रोज हैं, हमारे अंदर रोज संघर्ष है। हम जिनके साथ जी रहे हैं रोज, है ना, परिवार में नई लोगों के संघर्ष है, समाज में संघर्ष है ना। तो फिर वो देश पे और प्रकृति के साथ संघर्ष हो रहा है आपका, है ना, जिससे आप सब ले रहे हैं उसके साथ संघर्ष। उसका नतीजा प्रदूषण पे है, उसका नतीजा जो हमारे प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनके उसमें है। मानस कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं बड़ी देर से। हाँ मानस बोलिए सर। ऑन योर हेलो वीडियो सर। मानस, ऑन योर वीडियो। कंटिन्यू मानस। हेलो सर, जिस तरह आपने कहा फिजिक्स के लॉ और वैल्यू एजुकेशन के लॉ दोनों यूनिवर्सल होने चाहिए, बट सर कई बार ऐसा देखने को मिलता है जैसे किसी का बॉर्डर, किसी कंट्री का बॉर्डर किसी लड़ाकू देश से बॉर्डर सट गया हो, या पड़ोसी में किसी के खेत की जमीन किसी विवादित लोगों के आसपास आ जाती है, या किसी कई सब मतलब, या फिर कभी एक स्टूडेंट के लिए वैल्यू एजुकेशन के लॉ, या फिर किसी आर्मी में कोई सैनिक स्कूल में कोई लड़का पढ़ रहा है उसके लिए, तो हम देखते हैं बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। जो लोग आर्मी में हैं, या फिर उन लोगों के लिए वैल्यू एजुकेशन कुछ अलग हो जाते हैं। उन लोगों के लिए कई बार ऐसा हो जाता है जो मतलब उनका लड़ाई करना और यहाँ तक कि हत्या करना भी उनका धर्म बन जाता है। कई बार बॉर्डर पर क्लैशेस के दौरान, या फिर कई बार पड़ोसी किसी का लड़ाकू रहता है तो भी उनको कई बार लड़ना पड़ जाता है। तो ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि वैल्यू एजुकेशन के लॉ भी उसी तरह से यूनिवर्सल है? जैसा कि हमारे धर्मों में भी कई बार कहा गया है, जैसे श्री कृष्ण ही अर्जुन को कहे थे कि युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। तो फिर ये तो सर सिचुएशन के अनुसार से मतलब थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है वैल्यू एजुकेशन में। सर आपने कहा था फिजिक्स की तरह ही यूनिवर्सल होना चाहिए।
वो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मानस, कि अभी आपको चारों तरफ देखेंगे ना, कहीं भी किसी भी चीज की एनालिसिस करेंगे, स्थिति की एनालिसिस करेंगे, इफ यू स्टार्ट एनालाइजिंग, एक मतलब स्थिति की एनालिसिस करें, व्यक्ति की एनालिसिस करें, अपने परिवेश की एनालिसिस करें, तो हर जगह आपको समस्याएं दिखेंगी और ऐसा लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। कारण क्या है? देखिए, बहुत बड़ी चूक हुई है ना, जब से मानव सभ्यता विकसित होना शुरू हुई है, ये चूकी हो गई। अच्छा, यूनिवर्सलिटी केवल मैं वैल्यू एजुकेशन बोल नहीं रहा हूँ, यूनिवर्सलिटी जो है, कोएग्जिस्टेंस जो है, ये पूरे एग्जिस्टेंस में किसी भी इकाई को ले लो आप, है ना, उसको अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको दूसरी इकाइयों से ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। मनुष्य में जाते हैं तो बड़ा भ्रम हो जाता है, क्योंकि जो आप प्रश्न उठा रहे हैं बिल्कुल वाजिब है, कि कहीं कोई व्यक्ति तो उसको फॉलो करता दिखता नहीं है ना। आप बता रहे हैं भाई सैनिक है यस वो सर। तो मारेगा, है ना, और आपकी यस सर। जमीन दबाई तो आप भी उसको मारेंगे, वो भी आपको मारेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें, मैंने एटम का एग्जांपल लिया है ना, हम प्लांट का रिलेशनशिप उसके परिवेश से देखें, है ना, उसके आज चारों तरफ देखें, प्लांट का सॉइल से रिलेशनशिप, प्लांट का हवा से रिलेशनशिप, ठीक है ना, प्लांट यस का सर। मॉइस्चर से, बरसात से रिलेशनशिप, तो आप देखिए हर जगह पूरकता है, हर जगह कॉम्प्लीमेंटेरिटी है, हर जगह कोएग्जिस्टेंस है। यस कोई सर। भी स्थिति आप नेचर में उठा लो, तो आप क्या हो भाई? आप भी तो नेचर के पार्ट हो, आप भी तो उसी एग्जिस्टेंस के पार्ट हो जिसमें हम एटम को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम प्लांट को स्टडी कर रहे हैं, प्लांट और सॉइल के रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं, नेचर के हर एंटिटी के रिलेशनशिप को जब हम स्टडी करने जाते हैं तो हम पाते हैं कि एक ही दो ही बातें पाते हैं, यूनिवर्सल है और कोएग्जिस्टेंशियल है, तीसरी कोई चीज यस निकल के। सर। अब सारी समस्याएं आप जो बता रहे हैं मित्र, ये इसीलिए है कि मनुष्य ने उसको समझने में चूक कर दी, जी सर। है ना। हमारा इतिहास गवाह है। इसीलिए देखिए देशों के झगड़े हैं, इसलिए मेरा और आपका जमीन का झगड़ा है। आप सुखी होना चाहते हैं, मैं सुखी होना चाहता हूं, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है मनुष्य का। हर मनुष्य सुख से जीना चाहता है, शांति से जीना चाहता है, संतोष से जीना चाहता है, आनंद से जीना चाहता है ना। इसमें कहीं धर्म नहीं आता, कहीं जात नहीं आती, है ना, कहीं रंग यस नहीं सर। आता, है ना, गोरा काला नहीं है, महिला पुरुष का भेद नहीं आता, ठीक है। ये यूनिवर्सल है। क्या है, समझ में मेरी चूक है, मैंने यूनिवर्सलिटी को नहीं समझा, मैंने कोएग्जिस्टेंस को नहीं समझा, इसलिए मैं आपसे गलत तरह से पेश आता हूं, आपने समझा इसलिए मैं गलत तरीके। इतनी छोटी सी बात है, और यही बात व्यक्तिगत व्यवहार में झलकती है, यही बात जब हम ग्रुप में व्यवहार करते हैं उसमें झलकती है, हमारे अपने संप्रदाय बन जाते हैं, हमारे राष्ट्र के रूप में जब हम करते हैं व्यवहार तब भी, क्योंकि मूल समझ में ही बहुत बड़ी चूक है। इसलिए सारी समस्या वहीं से है मित्र। और जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, कि जब तक ये हम सब तक नहीं पहुंचाएंगे और सब लोग यूनिवर्सलिटीज और कोएग्जिस्टेंस को नहीं समझेंगे, तब तक ये यस सर। समस्याएं रहेंगी, ये रातों रात नहीं जाने वाली हैं। लेकिन जिस क्षण आप अपने ऊपर इसको अप्लाई करेंगे मानस, आप उसी क्षण से आपका जीवन सुखमय, खुशहाल, समृद्ध होना शुरू हो जाए, ये गारंटी मेरी है। यस सर। इसलिए इसलिए अंडरस्टूड सर। मेरा आग्रह यह है मित्र कि दूसरों की चिंता छोड़ो, है ना, हम पहले अपने ऊपर अप्लाई करें, है ना, हम समझें हमारे जीवन में क्या क्या सार्वभौम नियम है जो लागू होंगे, कहाँ कहाँ पूरकता, संपूरकता, कोएग्जिस्टेंस, सहअस्तित्व लागू होगा, और उस तरह से हमारे चारों तरफ की इकाइयों से हमारे क्या संबंध है, चाहे मनुष्य हो चाहे मनुष्येतर प्रकृति हो, है ना, उसकी यूनिवर्सलिटीज को समझने की कोशिश करें, उसी आधार पे कोएग्जिस्टेंस और यूनिवर्सलिटी के आधार पे ही समझें उसको। बाकी आप कैसे भी एनालाइज कर लो, कैसे भी पकड़ने की कोशिश करो, बाकी सब भ्रम है, बाकी सब मिथ्या है, जिसको माया भी बोला गया है ना। यस बाकी सर। बेवकूफ बनाने की बातें और कुछ नहीं है। झुंझुना पकड़ा देंगे, झुंझुने से आप जब तक छोटे बच्चे हो तब तक खुश रहोगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद वो भी झुंझुना पटक देता है, उसको दूध चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है ना। यस तो सर। तो और ये ऐसा लगता है कि ये कभी तक क्यों नहीं समझ पाया मनुष्य, मुझको भी बहुत आश्चर्य होता है कि अभी तक क्यों नहीं समझ पाया मनुष्य, है ना, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, है ना। हम लोग कोई बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थोड़ी ना, हमसे बड़े बड़े विद्वान भी आए हैं, लेकिन चूक हो गई। हम लोग का सौभाग्य ये रहा कि हमको मध्यस्थ दर्शन मिल गया, जीवन विद्या मिल गई, जिसने हमको पहली बार मेरे निजी कैपेसिटी में मुझको सोचने का, समझने का मौका दिया, मुझको अधिकार दिया, मुझको एम्पावर किया। इसके पहले सारे लोग ये बोलते रहे मैं जो बता रहा हूं उसको मान लो, है ना, वही सही है, बकवास नहीं करो, बहस नहीं करो, है ना, यही बताता रहा। पहली बार मुझको मध्य दर्शन में कहा कि नहीं भाई, तुमको अपने अपने बूते पर सोचना है, अपने स्तर पर सोचना है, अपनी समझ से सोचना है। हम तुमको आधार दे रहे हैं और आपको ही सोचना है, आपको ही लागू करना है ना। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई हमको ने तो जो हम जो बोल रहे हैं वही सत्य और वही फॉलो करना है। उन्होंने बोला नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ प्रस्ताव है, उसको जांच लें। जांचे किस आधार पे? यूनिवर्सलिटी के आधार पे और कोएग्जिस्टेंस के आधार पे।
अगर उस पे सही है तो आज इसको फॉलो करें तो रिजल्ट क्या होगा, सही होना चाहिए, है ना, हैप्पीनेस आनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए। अगर वो आ रहा है तो आप अपने आप फॉलो करोगे, क्यों मानव लक्ष्य तो एक है ना, समान है ना, हम किसी भी धर्म यस के हों, सर। किसी जाति के हों, है ना, किसी भी वर्ण के हों, मानव लक्ष्य है सुख समृद्धि पूर्वक निरंतर जीना, है ना। इससे 1 मिनट भी कम में हमको दुख तनाव बर्दाश्त नहीं होता, यस सर, अंडरस्टूड सर। है ना। थैंक यू सर। इसलिए लगता है कि ये जो जितने झगड़े, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि चारों तरफ समस्याएं दिखती हैं, है ना, लेकिन समस्याएं अगर हम जाएंगे स्रोत ढूंढने, और इसको सबसे अच्छा तरीका ये कि अपने ऊपर लागू करें, है ना, दुनिया की चिंता छोड़ें, पड़ोस की चिंता छोड़ें, क्योंकि सुख समृद्धि मुझको चाहिए तो पहले मैं अपने ऊपर करके देखूं। मुझको अगर सुख समृद्धि मिलेगी, जमाना मेरे पीछे आएगा, फिर क्या दिक्कत है ना। पड़ोस पूछेगा यार बहुत खुश दिखते हो, है ना, बहुत मस्त रहते हो, क्या कारण है, तब मैं तुम बता पाओगे मानस उसको कि भाई हाँ ये कारण है, इसको सीखो समझो आगे बढ़ो, है ना। यस सर, अंडरस्टूड सर। इसलिए इसलिए सब तक पहुंचे, थैंक यू सर। थैंक यू डियर। सब तक पहुंचे, इसके लिए रास्ता शिक्षा ही है। अगर ये शिक्षा में आ जाता है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को अगर एजुकेशन के माध्यम से एड्रेस किया जाएगा तो ये सभी ह्यूमन बीइंग तक पहुंचेगा। सभी ह्यूमन बीइंग तक अगर ये सही समझ पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक जो हमको शिकायत है या हमको जो सिस्टम में प्रॉब्लम दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। तो ये लंबी यात्रा है, हम शुरुआत स्वयं से ही करेंगे, लेकिन ये शिक्षा का में अगर आ जाता है ये, तो ये सभी तक ये समझ पहुंचेगी। और ये जो कोएग्जिस्टेशन बेस्ड जो वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये इसका जो सोर्स है वो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद है। इसके जो ऑथर हैं वो ए नागराज हैं। इनसे हमको ये समझ मिली कि ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की उन्होंने बात की, जहाँ पे धर्म नहीं है, जहाँ पर केवल मानव धर्म है। अभी अलग अलग धर्म के झगड़े हैं, इसमें कोई अलग धर्म के झगड़े नहीं है, केवल सुख ही मानव धर्म है, मानवीयता की उनमें बात आई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मोरल एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन काफी अलग है। और हमारे संस्था से जो सिविल इंजीनियर प्रोफेसर समीर वाजपेयी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सरल सहज ढंग से उदाहरण के साथ में उन्होंने बहुत अच्छे से इसको बताया कि ये कैसे माने कोएग्जिस्टेंशियल बेस्ड वैल्यू एजुकेशन, हाउ इज इट डिफरेंट देन मोरल एजुकेशन। तो ये यूनिवर्सल है, कैसे यूनिवर्सल है और कैसे हम सब पे लागू होगा, इस पर आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही, इसके लिए धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये काफी लोगों को क्लियर हुआ होगा। और फिर भी अगर किसी के मन में प्रश्न बनता है, क्वेश्चन है, तो वो हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आगे और इसको आंसर उत्तरित हम करेंगे। और किसी को कुछ पूछना है? मानस हो गया? अपर्णा? No, ma'am, it's clear. Sir explained so well. यस मैम, क्लियर मैम। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत जरूरी था ये टॉपिक रखना, क्योंकि सभी को यही लगता है कि ये कुछ नई बात नहीं है। और अगर मैं भी ये सोचती हूँ कि अगर मोरल एजुकेशन ही सार्वभौम होता तो आज मुझे लग रहा है कि समस्या कहीं भी हमको नहीं नजर आती। ये जो आप बार बार जो कह रहे हैं कि कहाँ हमसे चूक हुई है, वो सार्वभौमिकता नहीं थी, यही एक चूक हुई है। मेरा मूल्य अलग, आपका मूल्य अलग और उनका मूल्य अलग, मेरे देश का वैल्यूज अलग, दूसरे देश का वैल्यूज अलग। प्रॉब्लम यहीं पर आई है। अगर ये यूनिवर्सल रहता कि हम सभी ह्यूमन बीइंग का एक ही वैल्यूज है, तो शायद ये प्रॉब्लम हमको देखने में नहीं आती। लेकिन आज हम वहीं पर क्यों आ गए कि वापस हमको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए या वैल्यू एजुकेशन पढ़ाना चाहिए, क्यों आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक चूक तो हुई है। तो एक जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, वो मध्यस्थ दर्शन में हमको नजर आ रहा है। और ये एक ऐसा दर्शन है जो कहना चाहिए किसी धर्म और संप्रदाय का प्रचार प्रसार नहीं है, ये एक यूनिवर्सल एग्जिस्टेंशियल हार्मनी के लिए एक नॉलेज है, ज्ञान है, जो किसी धर्म संस्था या गुरु से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें कोई गुरुडम नहीं है, कोई संस्था की बात नहीं है, ये केवल ह्यूमन बीइंग की इसमें बात कही गई है। तो मुझे लग रहा है कि ये हमारा जो डिस्कशन है वो काफी इफेक्टिव रहा होगा, लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। फिर भी कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? अनुपमा, आपको कुछ पूछना है? Yes, ma'am. Hello, sir.
हाँ अनुपमा। सर आई मीन जैसे हम सर हम कुछ लाइक अगर हम किसी एग्जाम में कुछ फेलियर्स आ जाते हैं सर लाइफ में, कभी कभी एक टर्निंग पॉइंट होता है हम सबकी लाइफ में, तो सर वहां पे एक सर्टेन पॉइंट मतलब हम एक डिप्रेशन में होना नहीं चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं एक हो जाते हैं, मतलब एक वो एक स्टेट ऑफ माइंड आ जाता है उस टाइम पे, सर उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम? बहुत अच्छा सवाल है अनुपमा। और हमको एक्चुअली फिर वही जाना पड़ेगा कि सफलता क्या और असफलता क्या है और मानव लक्ष्य क्या है ना। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं ये कौशल क्यों सीख रहा हूँ, जैसे आप किसी ब्रांच में हैं, है ना, तो यू आर देयर टू लर्न अबाउट सम स्किल्स, है ना। व्हाई यू वांट टू लर्न अबाउट दैट स्किल्स? बिकॉज यू वांट टू सॉल्व problems for humanity regarding those skill requirements, है ना, those skill sets which will be used to solve those problems। ठीक, जब तक आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्षम, ये पूरी जर्नी है ना। इसमें हमको भी मालूम है कि आपके जो प्रोफेसर है जो पढ़ा रहे हैं वो भी पूरी तरह से सक्षम नहीं हुए सभी समस्याओं को सॉल्व करने में उस स्किल से रिलेटेड, है ना। एंड इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, इंजीनियर्स नेवर वर्क इन अ टीम। अब हमसे गलती क्या हो गई कि हमने जो पूरा, क्योंकि हमारी समझ में ही चूक थी ना, इसलिए पूरा सिस्टम जो एजुकेशन का और एग्जामिनेशन का जो डेवलप किया है वही फॉल्टी है बेटा। सही सिस्टम क्या होता, अनुपमा खुद बताती कि मैंने सीख लिया कि नहीं सीख लिया, है ना। क्योंकि काम तो अनुपमा को करना है, काम उसके प्रोफेसर को थोड़ी करना है, काम उसके इंस्टीट्यूट को थोड़ी करना है। एज स्किल है ना, आफ्टर एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी इन द रिक्वायर्ड स्किल सेट्स रिलेटेड टू योर ब्रांच, it is you who will be solving the problems of world and getting paid, है ना, in return, है ना, getting good salary, this thing। So who is most competent to certify that whether you have learnt or not? You yourself। तो मैं खुद। हाँ, अब हमने क्या कर दिया कि एक सिस्टम बना दिया, क्योंकि हमको अविश्वास है एक दूसरे पे। पहली चीज ये कि विद्यार्थी को हमने नहीं समझाया कि ये सीखना उसको क्यों है ना। yes. है ना, तो जब उसको ये समझ में आता है कि उसको क्यों सीखना है, ये सीखना उसको कैसे काम आएगा, इस सीखने से ही उसकी रोजी रोटी, उसका मान सम्मान, उसका रोजगार, है ना, उसकी आगे की यात्रा जो है वो इससे शुरू होगी, तो वो खुद गंभीरता से सीखने की कोशिश करेगा और पूरी ईमानदारी से बताएगा, नहीं सर, नहीं मैडम, मैं अभी ये सीख नहीं पाया हूं, मुझको और समय चाहिए। अच्छा, हर व्यक्ति की समझने की गति अलग अलग होती है। हम एक क्लास में 80 बच्चों को बैठा देते हैं और ये उनसे उम्मीद करते हैं कि सारे लोग आज जो लेक्चर मैं दे रहा हूं वो पूरी तरह से समझ जाएं। अभी आप लोग छोटे हैं, जब आप माता पिता बनेंगे और जब अपने बच्चों के साथ में उनकी शिक्षा की यात्रा देखेंगे, तो आपको ये मेरे साथ हुआ है, ये सब सारे पालकों के साथ होता है कि आज हम अपने बच्चे को कोई चीज सिखाना चाहते हैं, वो नहीं सीख पाता, वही चीज 3 महीने बाद वो अपने आप सीख के करके हमको दिखा देता है ना। तो सबकी जो गति है सीखने की वो भी अलग अलग होती है, सबकी रुचि अलग अलग होती है, सबका रुझान अलग अलग होता है। बिना इस बात को समझे हुए, इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं हमारे पूरे सिस्टम में, पूरी पढ़ाई के सिस्टम में रुचि रुझान समझने का और समझाने का कोई सिस्टम ही नहीं है, सिरे से खाली, आधार से बिल्कुल गोल है। तो जब तक ये देखिए, जब तक यूनिवर्सलिटी और कोएग्जिस्टेंस के पे आधारित हमारी समझ नहीं होगी, तब तक ये पीड़ा, ये यंत्रणा, ये संत्रास, ये दुख, ये क्षोभ, है ना, चाहे वो आप फेलियर का क्षोभ कहें, है ना, चाहे किसी के दूसरे के व्यवहार से असंतुष्ट होने का क्षोभ कहें, चाहे अपनी बात नहीं समझे जाने का क्षोभ आपको दुख होगा, ये चलता रहेगा, है ना। और ये लाखों साल से, जब से मनुष्य धरती पे आया है तब से चल रहा है। और अगर नहीं हम ध्यान देंगे, अपने सोच का आधार, अपनी समझ का आधार यूनिवर्सलिटी और कोएग्जिस्टेंस नहीं बनाएंगे, तो और लाखों साल तक चलता रहेगा। क्या क्या रखा है उसमें, है ना। ठीक है अनुपमा, मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। मैं तो बल्कि बहुत बार मुझको आश्चर्य होता है कि इतना खराब सिस्टम है, उसके बाद में बहुत कम लोगों को डिप्रेशन होता है या बहुत कम लोग दुखी होते हैं। ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय होता है एक्चुअली, कि जिस तरह से जिस अन्यायपूर्ण तरीके से शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था चलती है ना, तो मनुष्य में बहुत क्षमता है सर, होते ज्यादा है सर। केवल आधार देना है उसकी सोच का, सार्वभौमिकता का और सहअस्तित्व का, और चमत्कार कर देगा वो। सर, डिप्रेस्ड होते जाते हैं लेकिन शिकायत कम लोग करते हैं, तो सर टीचर्स के पास कम लोग आते हैं। दुख तो होता है। देखो, कोई भी व्यक्ति असफलता चाहता नहीं, है ना। ये होता है कि भाई उसको समझ नहीं आती खुद को, और उसको समझाने में एक्चुअली उसकी समझ का ज्यादा दोष नहीं है, उसके चारों तरफ जो वातावरण है उसका दोष है ना, कि वो क्यों नहीं समझा पाते कि भाई ये क्यों जरूरी है, ये क्यों समझ नहीं पाते। क्योंकि
सबका जो सोच का आधार है वो हिला हुआ है ना। वो सोच का आधार क्या है? सब्जेक्टिव है। जब तक सब्जेक्टिव रहेगा तब तक गलतियां होंगी। जब ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव किस बेस पे? यूनिवर्सलिटी के बेस पे, कोएग्जिस्टेंस के बेस पे हो जाएगा, सारी गलतियां तुरंत बंद हो जाती हैं, तुरंत बंद हो जाती हैं, तत्काल। इसमें कोई समय नहीं लगता इसको सीखने में, यूं चुटकी से परिवर्तन होता है ना। ध्यान देने की जरूरत है, बस हर जगह जांचते रहना है ना। जो भी बात आपसे कही जा रही है उसको केवल और केवल उसकी यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी और उसके कोएग्जिस्टेंस के बेसिस पे जानिए, है ना। बस इतना काम करना है। आसान काम है, क्योंकि ये काम आपको तृप्ति देता है, ये काम आपको सुख देता है। जब भी आप सही नतीजे पे पहुंचते हैं, उसके हिसाब से जीते हैं, नतीजा केवल और केवल तृप्ति और सुख है। इससे इस यात्रा में मजा है, इसमें कोई सजा नहीं है ना। Sir, I have a question. हाँ जी। So there are times when everyone makes mistakes, right? When we make a mistake, but Yes. it affects in a really serious way. Like it affects your whole career and life, and even changes your goals. So how to forgive oneself then? Forgive oneself. क्योंकि कोई देखो, आप खुद को देखो, हर चीज खुद के ऊपर लागू करें, दूसरों के ऊपर नहीं, है ना। दूसरे को हम समझते नहीं है, खुद को तो समझते नहीं, दूसरे को कहां से समझेंगे। सबसे पहले खुद के ऊपर लागू करो, भाई मैं मनुष्य हूं, है ना। क्या मैं जानबूझ के गलती करना चाहता हूं? हाँ, मैं जानबूझ के गलती करता हूं क्या? नेवर सर। क्यों गलती करता हूं? मुझसे गलती क्यों हो जाती है? गलती मैं करता नहीं हूं, गलती हो जाती है ना। क्यों गलती हो जाती है? क्योंकि मुझको चीज ठीक समझ में नहीं आई, है ना। मेरी समझ ठीक नहीं थी, समझ में लोचा था, है ना, इसलिए गलती होती है, ठीक है ना। तो जिम्मेदारी क्या होती है दूसरों की कि मेरी समझ को ठीक करें। समझ क्या मारपीट से, डांट फटकार से ठीक होगी क्या? नहीं, समझ तो प्यार से बैठा के समझाने से ठीक होगी, है ना। तो जैसा मैं हूं वैसा ही सामने वाला भी है, वो भी वही है। पूरा एटम के लेवल पे एनालाइज करने जाएंगे, यूनिवर्सल है बिल्कुल वैसा ही। तो जब मैं जानबूझ के गलती नहीं करता तो वो भी जानबूझ के गलती नहीं करता, उससे भी गलती हो जाती है, फिर उसकी समझ पूरी नहीं है ना। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? अगर मेरी समझ पूरी है तो उसकी समझ में पूरी करने में मदद करूं, ठीक है। तो इसलिए है ना, बहुत सीधा सा अपने ऊपर लागू करें, है ना, तुरंत सामने वाला भी समझ में आने लगता है। जब मैं समझ में आता है तो सामने वाला मैं भी समझ में आता है ना। हाँ, तो फिर कोई हमारे बीच में फिर भेद नहीं रहता, भेद नहीं रहता तो अपने आप हारमोनी होती है ना। ठीक, Thank you, sir. ठीक। Sir, I have also a question. हाँ मानस। Sir, as you said, universality and coexistence will lead to better society. But sir, if we go for that, then it may happen that we may lose our culture, like our local culture, if we go for globalization or maybe coexistence. Sir, what do you think? It will better to go for नहीं, मैं तो common culture, नहीं मानस, which is क्या है, मैं ये नहीं बोलूंगा क्या ठीक है क्या गलत है ना। मैं तो आपको बोलूंगा कि आप ये देखिए कि मानव लक्ष्य क्या है ना। ठीक है, हर मनुष्य क्या चाहता है, कहीं का भी किसी भी कल्चर में रह रहा हो, किसी भी देश में रह रहा हो, है ना, किसी भी संस्कृति में रह रहा हो, उसकी मूल चाहना क्या है? सुख समृद्धि पूर्वक जीना निरंतर, yes sir, है ना, peace and harmony. ठीक है ना। और जब मनुष्य निरंतर सुख समृद्धि में जिएगा तो जो कल्चर आएगा, जो संस्कृति आएगी, वो ज्यादा अच्छी रहेगी, बेहतर होगी कि खराब होगी आज की स्थिति से? I think sir, it will be better if we have a common culture which is mixing of all different cultures. नहीं, वो कैसा आएगा क्या आएगा अभी हमको स्पष्ट नहीं है ना। लेकिन हम अगर अपनी मूल आकांक्षा को देखें कि भाई हम सब निरंतर सुख समृद्धि में जीना चाहते हैं, और जब उस पे वैसा करने लगेंगे, जब निरंतर सुख समृद्धि में जीने लगेंगे, तो चारों तरफ तो स्वर्ग ही होगा यार, चाहे कल्चर के रूप में हो, चाहे व्यवस्था के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, है ना। स्वर्गवासी हो जाएंगे हम लोग, स्वर्ग में रहना चालू कर देंगे, धरती पे ही स्वर्ग हो जाएगा, मनुष्य देवता हो जाएगा, है ना। हाँ, because तो sometimes culture तो because अच्छाई की तरफ जाएं, बेहतर की तरफ जाएं, कि जो स्टेटस को है उसकी चिंता करते रहें? sir, we will always go for update to human society. And I think हम उसी लक्ष्य की तरफ जाएं जो हमारा मूल लक्ष्य है ना, निरंतर सुख एवं Yes, समृद्धि के साथ में जीना, ठीक है ना।
उसमें जो भी चीज आएगी, चाहे कल्चर आए, चाहे समाज आए, चाहे सोसाइटी आए, वो बढ़िया सोसाइटी होगी, बेहतर सोसाइटी होगी, बेहतर संस्कृति होगी, है ना? Sir, I just want to ask to you, sir, just one question in yes or no, sir. That what do you think, sir? There is a common culture for whole world. It will be more better or separate culture? What do you prefer? नहीं, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। इसका जवाब जो मैंने आज आपसे बातें की है ना, आप आराम से बैठिएगा, सोचिएगा, है ना, और Yes, sir. खुद आप इसका जवाब ढूंढिएगा, ठीक है ना? थोड़ा होमवर्क मैं आपको देता हूँ। Yes, sir. I will try to grasp it, sir. यस 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 यस। Thank you, sir. थैंक यू डियर, थैंक यू। ठीक है ना जी? Anyone, any question? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। काफी अच्छा रहा। हम तो चाहेंगे आगे भी आपसे ऐसे मिलते रहें, इस तरह से इंटरेक्शन सेशन हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब भी मौका लगेगा मैं जरूर, मुझको जरूर जोड़िएगा, है ना? जी सर, हम वैसे भी किसी टॉपिक पर आपसे भी सुनेंगे और हमारे विद्यार्थी आपसे भी इस तरह से कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, हम सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद, मुझको ये अवसर देने के लिए, धैर्य से सुनने के लिए और बहुत अच्छे प्रश्न पूछने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सर आपका भी धन्यवाद। आप इतनी व्यस्तता में भी, रविवार छुट्टी का दिन है, उसमें भी आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर, माय प्रिविलेज। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जी सर, Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much.